Yes, ma'am. You're audible. Okay. So it's Good. 7:20. Now we'll proceed for our today's meeting. Okay. Okay. Start now. Good evening, everyone. Myself Navneeta, and I'll be your host throughout this session. Firstly, I welcome you all on behalf of Johar Lord Buddha Foundation for the internship session. Our topic will be the role of ICT in information and knowledge management. May I now request your attention as we invite our coordinator, ma'am, Dr. Anita Mishra, to share her thoughts with us today. Thank you, Navnita. So, students, again a very good evening to all of you, and happy Children's Day. So, I welcome you all in this internship session, and you all have gathered here for an internship, which is a professional learning experience that offers skills and opportunity to career enhancement and development of your skills. So, this internship will helpful for our uh, all total development. There are different classes, different sessions are uh, privileged from Lord Buddha Foundation. Okay, so it improves the quality of education, and you all know that it is compulsory to enroll in the NEP internship as per our UGC norms. That's why you all are registered in internship. So it enhancing learning experience. Okay. So our topic is on the role of ICT in information and knowledge management. So information is very important in our life. So without information, we can't exist. Our society is without information, it's useless. And knowledge management refers to the systematic process of capturing, sharing, and utilizing knowledge within their educational institution. So, uh, it overall helps the students to gain much insights into the digital and knowledge-driven world. So, uh, this organization provide you not only topics on this aspect, okay, so but also in various fields, experts are invited by our organization, and you will get a good experience throughout your internship. So this internship is for 2 months. uh, in the month of November and December, the inter classes will be held, and at the end of December, uh, after completion of the classes, two assessment is there. uh, MCQs pattern questions are in share in a Google form, and you have to uh, attend that exam. So this internship, uh, as we know, that main thing is on information management. Okay, so as we know, information is very important. So information management is that's why very important. Information management is the process of capturing, storing, retrieving, and using information in an organization in efficient way. So information management is not important in organizational level, but also it is very important in our uh, personal life also, because for for career development, for the growth of in every field, we need information. So information is very important, and if we properly manage our information, then we will must success in our life. So
Suppose one example of information management is, you all know the use of Gmail. Okay, so information management can take on many forms. Okay, so your mail inbox, the computer, the phone, uh, everything, you manage your information through these tools. So there are various benefits of information management. Okay, so information management improve productivity and efficiency. It growth the faster information access, develop an effective information policy, support business need, improve performance. Okay, reverse security. Then it also develop and enhance the improvement of risk management. Then it enhance compliances. It develop business intelligence, business continuity, data analysis, disaster recovery, and other. So information management is a very important aspect in every life, and through information management, we know how to uh, store, retrieve one information in proper way. Now, it is a very well-known terms. We all have heard that information explosion. Okay, information explosion means, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको मैनेज करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग को जितना भी स्पेस रहता है कोई भी मीडिया में, आप लोगों को वो स्पेस कम पड़ जाता है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. What are the tools of information management? What is the softwares through which we can easily manage the information? So throughout हम लोग का इंटर्नशिप जो है, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्लासेस लिया जाएगा, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा आप लोगों को. सपोज एआई हुआ, देन वेब 2.0, 3.0, 4.0 है and its tools, then cloud computing, then plagiarism, about technical writing, how you will prepare your article, your assignment, your paper, etc. Then about the information on your information management, that is, it may be electronic information management or it may be your offline information. Okay, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग का दो सोर्स में आता है, एक ऑनलाइन आता है इंफॉर्मेशन और एक ऑफलाइन इंफॉर्मेशन आता है. देन इसमें और भी बहुत सारे टेक्निकल राइटिंग पे हुआ, देन रेफरेंसिंग, साइटेशन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन टुडेज इंफॉर्मेशन एरा. सो आप लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन है, कुछ क्लोज इंफॉर्मेशन है, कुछ ओपन एक्सेस इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन का कोई बाउंड्री नहीं है. तो आप लोग सब कोई इंफॉर्मेशन से एक्वेंटेड हैं. यू ऑल्सो, बिकॉज यू ऑल हैव स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल लर्निंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टूल्स, एवरीथिंग, यू आर एक्वेंटेड विद दिस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. सो जो भी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को इसके बारे में भी एक क्लास रहेगा, मोबाइल लर्निंग के बारे में. ओके, सो हम लोग कोशिश किए हैं थ्रू आउट इंटर्नशिप ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर करने के लिए जो not only that subjects or that courses are important in your graduation level, but also it will helpful in your higher education. अगर आप फ्यूचर में जब पीजी लेवल में जाएंगे, क्योंकि अभी के पैटर्न में आप लोग सोचिए कि 1 साल का मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे तब जाके ग्रेजुएट कहलाएंगे, बिकॉज यू हैव 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ओके, तो जब ये इंफॉर्मेशन आप लोगों का जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नॉलेज है, प्रॉपर आप लोगों के पास रहेगा, तो आप लोगों का देखिएगा स्किल का डेवलपमेंट जो है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलिए, स्किल का डेवलपमेंट बोलिए, स्टडी बोलिए, आप लोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में जान पाएंगे. प्लस और एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स हमको पूछे थे कि मैम हम तो आईटी का टॉपिक है बट हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश से हम उतना एक्वेंटेड नहीं हैं. बट स्टूडेंट, आप लोग वरीड मत होइएगा. बहुत सारा ऐसा क्वेरी आया था मेरे पास बच्चों से
कि मैम ये तो आईसीटी लिखा है तो सारा तो टोटली इंग्लिश में होगा, हम मैंने कैसे समझेंगे। बट स्टूडेंट, आप हिंदी में एग्जाम दें या इंग्लिश में एग्जाम दें, यू ऑल आर यूजिंग इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो चाहे ऑफलाइन इंफॉर्मेशन हो। और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन इंफॉर्मेशन आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, दो दे आर वेरी एक्सपर्टाइज इन इंग्लिश, बट हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें जो होगा वो आप लोगों को हिंदी में भी शेयर करें, सो दैट, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग तो बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं क्लासेस के लिए, तो उन लोग को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी हो पाएगा बच्चों को सिंपल वे में जो टॉपिक समझाया जाएगा उन लोग को गाइड किया जाए, सो दैट बच्चों को उससे बेनिफिट मिले। और एक चीज़ इसमें, जैसे आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी दिया जाएगा। तो जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। हम बच्चों से बात किए हैं, बच्चे आके हमसे मिले भी हैं। तो बच्चे लोगों को हम बोले हैं कि जो लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ऑफलाइन क्लासेस इन द सेंस वो बाहर कहीं नहीं होगा। ये क्वेरी भी बहुत आया था कि मैम ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होगा। सो ऑफलाइन क्लासेस हमारे जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा। एंड जो ऑफलाइन क्लासेस होगा, मैंने इस क्लास इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल क्लासेस को ही हम कोशिश करेंगे कि उसको ऑफलाइन में देने के लिए, और स्टूडेंट जो मतलब रिक्वेस्ट के हिसाब से हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ करने से कैसे करने से कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे आईटी के टूल्स हैं, एआई के टूल्स हैं, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, देन एडवांस एक्सेल है जो हम लोग का मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रैक्टिकल वगैरह में आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम मैंने कुछ प्लानिंग की है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड किया जाए। देन वन थिंग, और बच्चों, आप लोग अटेंडेंस को हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस अगर सही नहीं रहेगा तो आप लोगों को इंटर्नशिप में रजिस्टर होने से भी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत बच्चे हैं, अप्रॉक्स 150 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो एवरीडे क्लासेस जो होगा हम लोग का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो सकता है। जैसे एक्सपर्ट जिस हिसाब से टाइमिंग देंगे उसी हिसाब से होगा। अगर जैसे मैंने कोई सेमेस्टर का प्रॉब्लम होगा, जैसे लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे, बीकॉम का मिड सेमेस्टर ऑफलाइन में है, तो हम इस तरह का अगर अदर डिपार्टमेंट का, क्योंकि हम कॉमर्स के बच्चों से कम्युनिकेट किए हैं, और ये और कुछ स्टूडेंट्स तो बताए नहीं थे, बिकॉज हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं इसमें, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, देन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, एंड कुछ स्टूडेंट ज्योग्राफी के हैं, और शायद जोलॉजी की एक हैं, और पॉलिटिकल साइंस से 4 बच्चे हैं। तो सपोज अगर आप लोगों का ऑफलाइन मिड सेम एग्जाम होता है इन बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, तो आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना है, सो दैट जो टाइम में होगा वो एग्जाम, उस टाइम में हम क्लास नहीं रखेंगे। कोशिश करेंगे मैंने उसके बाद हो या उसके पहले हो, सो दैट यू विल ज्वाइन द मीटिंग। ओके, एंड और एक चीज़, अगर जैसे हम देखे हैं, इवन आज भी नोटिस किए हैं, बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या किए हैं, फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत मिस्टेक किए हैं, इवन अपना नाम तक भी आप लोग मिस्टेक फिल किए हैं। सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम व्हाइल वी जनरेट योर सर्टिफिकेट्स। एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीक में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। सो जब भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ इश्यू होगा, आप लोग उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा, तो आपका सारा डिटेल्स, सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। देन जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम ऑफलाइन क्लास के लिए भी बोलेंगे कि जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टूडेंट्स किस हिसाब से कितने स्टूडेंट पर डे कहाँ पे कैसे एकोमोडेट करेंगे, ये सब प्लानिंग हम करेंगे। सो आप लोगों को जो चैट बॉक्स में आप लोग अपना जो अभी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सेमेस्टर लिख रहे हैं नेम के साथ, कोई कोई एग्जामिनेशन रोल नंबर भी लिख रहे हैं, तो इन फ्यूचर जब आप लोग को नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सैटरडे तक हम जनरेट कर देंगे। तो जैसे मिल जाएगा आप लोग
आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम देना है। एंड सारा मीटिंग आप लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कि कौन ज्वाइन करे कौन नहीं ज्वाइन करे ऐसा मत सोचिएगा कि ये डिपार्टमेंटल आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस है। ओके, एंड एवरीडे आप लोगों का अटेंडेंस लिया जाएगा। और वो अटेंडेंस ऐसे मत सोचिए कि मैम कहाँ लेती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का ऑटोमेटेड जो ज्वाइन करते हैं दे आर प्रेजेंट। ओके, नो नीड टू स्पीक एक्स वाई जेड और लाइक दिस, वो ऑटोमेटिकली सारा अटेंडेंस रिकॉर्डेड हो जाता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है सबको, लास्ट में आप लोगों का अटेंडेंस फेच किया जाएगा। जो बच्चे का अटेंडेंस कम होगा उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, देन आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑन योर अटेंडेंस। ओके, एंड आप लोग इंटर्नशिप में आज का जो हम लोग का है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटर्नशिप के टॉपिक के बारे में सारा डिस्कशन होगा। कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। कल का सेशन ईआरएम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट पे है। टाइमिंग उसका है 3 से 4। तो आप लोगों को सबको ज्वाइन करना है, प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को भी बोलिए, वो लोग ज्वाइन नहीं किया उन लोग को कंपलसरी ज्वाइन करना है। ओके, एंड थैंक यू ऑल। आई होप आप लोग एंटर जर्नी एंजॉय करेंगे एंड ए गुड एक्सपीरियंस लेके ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे और अपना इंटर्नशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for briefing us on the important guidelines and describing the role of ICT in information and knowledge management. It is our honor and privilege to have our internship director of Johar Lord Buddha Foundation, Mr. Gopal Krishna Sharma, with us today. Sir completed his BSc Electrical Engineering from BIT Sindri, Dhanbad. He also completed his MBA from BIT Mishra, Ranchi, and he did his system engineering course from Tokyo, Japan. He retired as the general manager from Central Mine Planning and Design Institute Limited, which is a subsidiary of Coal India Limited at Ranchi. His professional qualification includes being life member of Computer Society of India and life member of Institution of Engineers of India. He has been honored with the awards like National Merit Scholarship for 6 years from matriculation and also has been nominated for Gondwana Award for 2 consecutive years for outstanding performance in the company. Sir has visited 12 countries like Japan, Hong Kong, Thailand, and has a social work experience at Bharat Vikash Parisad. He was the secretary of Ranchi Madhya branch for 3 years, general secretary of Jharkhand Prant for 3 years, and regional joint secretary for 4 months. Sir, your expertise and vision has inspired many, and we are grateful to have you join us today. I am sure your warm presence will inspire us in every aspect of life. Now, I request Sir to kindly share his thoughts with us today. Okay, thank you to all the students and the director or CEO of the Johar Lord Buddha Foundation, Ranchi, Dr. Anita Mishra, who is the course coordinator for this internship program. As you just came to know that I am basically a coal man. Coal means I worked in Coal India for 36 years. So basically electrical engineering, passed out from BIT Sindri as just mentioned by the announcer in 81. Before proceeding ahead, I would like to bring some facts about my career and the industry in brief. And of course, my lecture will be not only in English, but I will talk
in Hindi also as and when required, so that you students can follow it, grasp it very easily. The year 1981, when we passed the engineering college, that time there was no computer engineering department, no computer engineering branch in any engineering college in India. Only the computer science was only one paper that was taught in the electronics and communication engineering, and to some students of electrical engineering. Or this electronics, computer, AI, and all these things are mainly or has only one route from where it has generated, that is electrical. If you go to any foreign country, you will see that all this information science, information technology, computer science, and blah blah, all these branches are under electrical engineering department. So I was the student who learned about the electrical engineering, and only one paper as an elective was there in the final year. And in that paper, we were taught about the hardware of the computer, what is gate, NAND gates, air gates, so many technology about the analog computer, digital computer, and all this. No programming at all, no Word, no PC, no laptop, nothing. It was just a mini computer that was purchased in the 8081 and brought in our institute, and head of the department was Dr. Burma, who was the grandson-in-law of Dr. Rajendra Prasad. So we pass out with a very good marks, clear the elective paper also, and got the distinction also, but have never seen the computer in real life that time. So अंत में हम लोग बोलते थे कि सर कम से कम कंप्यूटर तो दिखा दीजिए कैसा होता है। क्लास में, पेपर में, किताब में देखे, पेपर में देखे हैं, बुक्स में देखे हैं, मैगजीन्स में देखे, दिखा तो दीजिए। नो 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 नो, इट इज वेरी sophisticated equipment, nobody can enter in that room, it is very clean, you have to be very neat and clean, all this, but we were not exposed to the computer. Later I joined the computer programming course in Patna, that was for 6 months, and what were that subject? It was only Fortran, Basic, and COBOL. From there we learned the programming. Anyway, what I mean to say that in last 40 to 45 years, there is a tremendous growth in the field of computer, or we can say to information computer technology, and many other adjoining fields. So, at the topic of your internship is a role of ICT in the information and knowledge management. What is information? Information are nothing. It's collective data which is required for performing certain tasks, which is required for doing something jobs. So that information is a very vital thing in any field of the life, whether it is economics, commerce, arts, science, engineering, medical science, just to name the field, and informations are there. So how expert you are, how intelligent you are to gather those information, to store those information and process those information so that you can get the desired result as per your need. And for that processing, collection, storing, processing, and delivering in voice or in printed materials, that's required, that all these things require technology. And what is that technology? Your mobile, your computer. Computer may be mini, maxi, laptop, what notebook, etc., etc. And what is which use information from one place to other place, one department to other, one people to other people. So that is called communication. So it's a technology which is involved in creating the information, possessing the information, processing and sharing among the industry or a group of people or your career in an industry. So it's a management is very, very important. And that's why I think
your coordinator has, or the CEO, Dr. Bhushan ji, has selected this very nice and very relevant topic for your internship. And I am happy to know that you people are very lucky that your mentor, Dr. Bhushan and Madam Mishra, are well versed, very knowledgeable persons in the field of computer. They are working in this field for last several years. And I have no doubt that they are much more conversant and expert than me, because I am old persons. Computer is growing so fast. So I can say that you will be trained, you will be guided in your project by these learned faculty and some other faculty members, who will join you later on. So for the organization, we are getting the training, that is Johar Lord Buddha Foundation. I think you know this organization either from your course director or from the different platforms like the website or even the pages on WhatsApp, YouTube or Twitter or Instagram, Facebook. These organizations are varied advertisements. So from where you may be knowing many activities of this organization where you are getting this, where you will get this internship. But as I know, since I have, after retirement in 2017, I joined one organization. Of course, we can call it an NGO, Bharat Vikas Parishad. It is a national level organization who serves the society and expand the patriotism and the good gesture towards the nation. So I met the director of this organization, Dr. Bhushan, and attended with him so many places like schools, some sewing machine centers, some Bal Sanskar Kendras, different temples, and different places along with him. And from there, I was in contact with the organization and found this very much very good information in the field, very good organization in the field of service, which is rendering continuous facilities, benefits to the unprivileged or say poor people, poor students of the society, which is very necessary today. So I am now leaving this part of the detail of the organization, that is Lord Buddha Foundation. You will be knowing and may be exposed later on by the director or the course coordinator. Now I'm coming to internship. What is internship? What does it mean? Intern, you know, from the word intern, it has become internship. हिंदी में इंटर्न को प्रशिक्षु बोलते हैं, प्रशिक्षु। इंटर्नशिप प्रशिक्षण बोल सकते हैं या प्रक्षुषिता बोल सकते हैं। तो ये है क्या? An internship is a professional learning experience that offers meaningful and practical work related to a student's field and a study or career of interest. इसको हिंदी में बताएं तो आप ये समझ लें, इंटर्नशिप का मतलब है किसी संगठन द्वारा छात्रों को दिया जाने वाला स्थायी कार्य अनुभव। ऐसा संस्था, ऐसा संगठन जो कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए छात्रों में अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कार्य अनुभव का एक्सपोजर कराती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है कहाँ जुड़े हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है और इसका क्या विभिन्न एक्टिविटीज है, रोल है, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप सर्टिफिकेट लेके कहीं आप जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में या आगे, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपने कहाँ पर एक कोर्स किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन में। आप बोलेंगे लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन में, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि ये
ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ब्रांचेज क्या है, टर्नओवर क्या है, कितने लोग काम करते हैं, इसका एरिया क्या है, तो ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। और चूंकि आप वहाँ कार्य अनुभव ले रही हैं, वर्क एक्सपीरियंस ले रही है, इसलिए दे एक्सपेक्ट टू नो ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू। तो ये तो आप आराम से आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये इंटर्नशिप करने का फायदा क्या है, क्यों कराया जाता है, इसके जरूरत क्या पड़ा। जैसा कि मैडम बता रही थी या मुझे भी मालूम है कि नई ये शिक्षा नीति में ये कुछ समय के लिए ये कोर्स अत्यावश्यक है। ये जनरल आर्ट, साइंस, कॉमर्स में भले ये अभी नया हुआ हो, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ये पहले से है। और वहाँ तो क्लास नहीं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम कंपलसरी है। और इसकी अवधि 2 महीने से लेकर के कुछ सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना या 6 वीक से कहें या 8 वीक से कहें, लेकर के 1 साल तक होती है। तो इस पीरियड में आपको उस कंपनी के बारे में, सारे एक्टिविटीज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उनके काम करने का तरीका के बारे में, उसका लीगल एंटिटी क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी शेयर की जाएगी। ये तो दूसरा पार्ट हुआ, जहाँ पर आपको इंटर्नशिप करना है, उस संगठन की जानकारी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है, क्या उसका एक्टिविटीज है, कि कौन कौन सा फंक्शनरीज हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ इनके ब्रांचेज है, कहाँ कहाँ सेवा केंद्र हैं, ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज़ आपको जानना चाहिए। ये भी आपको ब्रीफ में शुरू में बता दिया गया होगा। अब इसके जो फायदे की बात कर रहे थे, आप तो ठीक है 2 महीने का शायद ये कोर्स है आप लोगों का, आपने कोर्स जो है इंटर्नशिप में जो टॉपिक है आईसीटी का रोल, उसका नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में आपने जान ली, तो सर्टिफिकेट मिल गया, आप जान गए, सारी जानकारी हो गई, आपने सर्टिफिकेट, जहाँ जॉब का वहाँ यूज, ठीक है। नहीं है, ये तो इसका एक एस्पेक्ट हुआ। Aspect is you are applying theoretical knowledge which you are gaining, which you have gained in your classroom in the real world. आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, आपको जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं किताब में, सिलेबस में, क्लास में, प्रैक्टिकल में, ये थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ, सैद्धांतिक जानकारी है। जब तक इसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगी तब तक इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और वो आता है कब, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, जब आप सर्विस करने जाते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं या किसी को पार्टनरशिप में एसोसिएट के कोई अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर यही थ्योरेटिकल नॉलेज उस प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट होता है। इसके लिए ये जानकारी आपको आगे दिक्कत नहीं हो जब आप फुल टाइम जॉब करेंगे, इसीलिए ये टेम्परोरी 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का ये कोर्स कराया जाता है, ताकि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करता है, एम्प्लॉई का क्या रोल है, हम अगर इंजीनियर हैं, हम अगर इकोनॉमिस्ट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री कॉमर्स में हैं या किसी हिस्ट्री में भी है, तो हम कैसे उस जानकारी को आगे अपने जॉब में यूज करेंगे, इसका आपको एप्लीकेशन का तरीका मालूम होगा, ये बेनिफिट मालूम होगा इंटर्नशिप करने के दौरान। दूसरा, जो आपके पास नॉलेज है वो कैसे ट्रांसफर आप करेंगे इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आप पहले से कुछ जान रहे हैं या कुछ सीखे, तो इसको कैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, नंबर 1। या वहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सीख रही हैं या सीख रहे हैं, तो वहाँ डेटाबेस होगा, वहाँ प्रोग्रामिंग होगा, वहाँ हार्डवेयर होगा, वहाँ सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, उसको भी आप कैसे यूज में ला रहे हैं, कैसे वहां से आपको जानकारी मिल रही है, बोथ वे, हाउ यू आर एक्सपेंडिंग योर ट्रांसफरेबल स्किल्स, ये जानकारी आपको मिलेगी। प्रोफेशनल कनेक्शन डेवलप करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको स्टूडेंट से, अपने बैचमेट से 1 साल आगे पीछे, या टीचर्स और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोगों से जानकारी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में या मिलता जुलता इंडस्ट्री में जो लोग हैं,
उनसे भी आपको जानकारी मिलेगी, उनके साथ आप प्रोफेशनल कनेक्शन होगा, तो ये भी जरूरी है। प्लस आप जब कहीं जॉब अप्लाई करेंगे या आगे जाएंगे तो बायोडाटा बनाया जाता है, कहीं भी होगा तो बायोडाटा रिज्यूम मांगा जाता है। तो उस रिज्यूम में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एक ये जो इंटर्नशिप का जानकारी भी देना जरूरी है। जो इंटर्नशिप नहीं किए हैं, अच्छा टॉपिक नहीं है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, या ठीक से उस पर जवाब नहीं है जब मालूम है, तो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अच्छे, अगर आप अच्छे ढंग से किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इंडस्ट्री है जो आपके परफॉर्मेंस देख करके 2 महीने का कार्य या जो भी 6 महीने का कार्य देख करके आपका काम करने का तरीका, आपका इंटेलिजेंस, आपका सिस्टम, आपका नॉलेज देख करके बहुत सारा कंपनी जॉब ऑफर भी करती है कि भाई ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, इनका स्टूडेंट बढ़िया है, इसको बहुत सारा चीज आता है, इसका बिहेवियर, इसका डिसिप्लिन, इसका बात करने का तरीका बढ़िया है, इसको हम लोग अपने यहाँ ऑफर दे सकते हैं। ये बहुत सारा, खासकर IT फील्ड में बहुत ज्यादा होता है, और भी फील्ड में जॉब स्टेबिलिटी बेटर होगी, आपका कैरियर का ग्रोथ जो है ये बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं। आज इस इंटर्नशिप में जैसी मुझे जानकारी है कि शायद 400 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के कलीग आपके बीच में ये शेयर कर रहे हैं, आपके साथ ये भाग ले रहे हैं इस कोर्स में, तो आपके साथ एक फ्रेंडशिप बनेगा जिनसे डिफरेंट तरह का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और जो अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज है, और इस एडवांटेज का यूज करके अपने कैरियर में, ग्रोथ में आप बहुत अच्छा करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ये शिक्षा नीति में इसको इंक्लूड किया गया है। ये अब बात आती है थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे आप अभी हमने बात की है, आपका जो इंटर्नशिप हो रहा है वो जवाहर लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन में है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और ये सब सारा जो इसके लिए जरूरी है, लीगल एंटिटीज, एवरीथिंग इज देयर। एक बहुत अच्छी कंपनी है, सेवा के काज में, सामाजिक काम में बहुत रुचि ले। इसके अलावा और क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? An organization is a group of people who work together to achieve a common goal. इसको हम लोग कंपनी भी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस तो बोलते ही बोलते हैं। तो जहां एक लोगों का एक ग्रुप हो, वो एक लीगल एंटिटी के अंदर काम कर रहे हो, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई सामान तैयार करना, सर्विस प्रोवाइड करना, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, हमें ये करना है। तो इसके साथ साथ हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी जनरेट करना है ताकि कंपनी आगे बढ़े, एक्सपेंड करे। तो कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है? सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ पीपल होंगे, उनकी लीगल एंटिटी होगी। लीगल एंटिटी मतलब वहां पर कितने लोग हैं, किस स्ट्रक्चर क्या है, किसका क्या रैंक है, क्या जवाबदेही है, क्या उनका फंक्शन है, ये सब से एक बंधे हुए हैं। और ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस देना है और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना है। और ये जब किसी का ये 3-4 फैक्टर जब मिल जाएंगे किसी संस्था में है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली स्पीकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, NGO भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज में म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, ये सारे जो ऑफिसेज हैं, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट भी आता है, जैसे कि NTPC, भेल, सेल, ONGC, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। रेलवे है, PNT है, या और भी सारी कंपनियां हैं। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट का एक शेयर रहता है, लेकिन
नियमावली कंट्रोल अल्टीमेटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का हर एक राज्य का अपना एक नेटवर्क है, जिसके अंदर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लेबर डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का, सारा चीज का अलग अलग विभाग है। वहाँ वहाँ नौकरी रहती है और उनका भी पब्लिक सेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो ये भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑनर कौन है? गवर्नमेंट है। इसमें कोई प्राइवेट को पैसा नहीं जाता है, नुकसान हुआ या फायदा हुआ या गवर्नमेंट के अंदर जाता है। दूसरा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का आप नाम सुनते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट हैं, जिसके ऑनरशिप प्राइवेट हैंड में रहता है। प्राइवेट वो चाहे सिंगल एक आदमी का हो या ये पार्टनरशिप हो या एक ट्रस्ट के रूप में हो, तो उसका फायदा अल्टीमेटली उस फैमिली को मिलेगा, उस ऑनर को मिलेगा। तो वहां पर आप आंसरेबल हैं उस आदमी के प्रति। गवर्नमेंट कंपनी में आंसरेबल हैं आप गवर्नमेंट के अंदर में। गवर्नमेंट का एक नियम कानून है, उसी तरह से प्राइवेट का भी एक नियम कानून है। हर चीज का एक वेल डेजिग्नेटेड, वेल स्पेसिफाइड, वेल डॉक्यूमेंटेड एक मैनुअल रहता है, गाइडलाइन रहता है। चाहे वो कंपनी का ऑपरेशन का हो, कंपनी के परचेज का हो, कंपनी के सेल्स का हो, कंपनी के HR पॉलिसी होती है, मार्केटिंग पॉलिसी होती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल मॉनिटर। उसके साथ साथ बिजनेस डिपार्टमेंट भी होता है, गाइडलाइन होता है। ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए ही लोग उस कंपनी में काम करते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्ट या बेनिफिट देते हैं। ये इसके साथ साथ बहुत सारी NGO हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, और लेकिन वो समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, ये जहाँ जरूरत हो वैसे लोगों को, नीडी लोग को मदद करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ऐसे संस्था की जरूरत होती है, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हालांकि इसका मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम भी गवर्नमेंट के द्वारा होता रहता है। तो ये अपने आप में एक संस्था ऐसी है। और आपको शायद मालूम होगा कि आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं वो इसी तरह का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो समाज की भलाई के लिए, सेवा के लिए काम करती है। इसके साथ साथ गरीब बच्चों के लिए पुस्तक का वितरण है, पठन पाठन सामग्री का वितरण करती है। देहात, सुदूर गांव में जहां बच्चों हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनको संस्कार देने का, ये सारी काम आपकी कंपनी करती है। अब आपको, जैसा कि मैडम बता रही थी, कि आपके टॉपिक के हिसाब से एक सिलेबस होगा, एक सेमेस्टर वाइज कुछ प्रोग्राम होगा, जिसमें थ्योरी क्लास होंगे, कुछ प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन होंगे। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू बताया जाएगा और वो टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलेगा। आप एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो मैडम बोल रही थी, कि इसमें अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। क्या है कि आप जब भी कोई कोर्स करते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें से 1-2 क्लास भी छूट गया तो आपका लिंक टूट जाएगा। तो आपको इसमें न सिर्फ जुड़ना है बल्कि टाइम से जुड़ना है। जब आप जितना सिंसियरली आप जुड़ेंगे, जितना इस पर ध्यान देगा, उतना ज्यादा फायदा आप इस इंटर्नशिप से ले पाएंगे। अदरवाइज कैजुअल वे में करने से इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो जब सरकार या आपका इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज इतना प्रोवाइड कर रहा है, ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि इस पर फुल टाइम दें, टाइम पर जुड़ें, और जो नियमावली है, जो गाइडलाइन है, आपको बताया जाएगा, ये आप ऑनेस्टली पालन करें। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया हूँ, और इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much, sir, for sharing the valuable information and insightful knowledge. Without any further delay, let us first review the guidelines quickly. Kindly take a note of the following. All the students will be muted throughout the session to avoid unwanted disruptions. इस सेशन के दौरान सारी छात्राएं म्यूट रहेंगी. 75% attendance is compulsory for all, and we need your active participation with full sincerity. सभी छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है.
All students can put up their questions on the chat box related to the topic and only the relevant ones gets answered. सभी छात्राएं अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं. महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाएंगे. Girls, kindly join the meeting 30 minutes before the scheduled time for less hassle. सभी छात्राएं 30 मिनट पहले इस मीटिंग और इस सेशन को ज्वाइन कर लें. Pay full attention to the session to answer the assessment test effectively that will be taken thereafter. सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सेशन को सुने ताकि आप सब अच्छे से परीक्षा दे पाए. After the completion of every class, you will be provided 15 minutes for the doubt session related to this internship. क्लास समाप्त होने के बाद सभी छात्राओं को 15 मिनट डाउट क्लियर करने के लिए दी जाएगी. किसी को कुछ भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, एक्सपर्ट के लीव होने के बाद आप पूछ सकते हैं. So, thank you all for your cooperation and time, and I wish for your support throughout this session to make this internship a great success. Now, girls, you may leave the meeting, and the ones who have any further queries can stay back. सभी छात्राएं अब मीटिंग लीव कर सकते हैं और जिन्हें कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं और रुक सकते हैं. थैंक यू.